Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice question with answer regarding Motor Vehicle Act. So let's start the video. So your first question is, this authority is empowered to constitute claims tribunal under the Motor Vehicle Act 1988. Option A, appropriate government. Option B, road transport authority. Option C, central government. Option D, state government. So your right answer is option D, state government, right? So this authority empowered means अधिकार to constitute claims tribunal यानी कि दावा अधिकरण के अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि इस अथॉरिटी के पास वो पावर है तो वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन सेल ड्राइव अ मोटर व्हीकल और कोज और अलाव अ motor vehicle to be driven in any public place at a speed blank the maximum speed. Option A, limiting. Option B, exceeding. Option C, both A and B. And option D, none of the above. So your right answer is option B, exceeding. राइट, यानी कि कोई भी पर्सन जो भी मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, जो भी लिमिट जो एक्सीडिंग लिमिट से ज़्यादा अगर हुई तो वो पब्लिक प्लेस में कोई भी पर्सन ड्राइव नहीं कर पाएगा, राइट। यानी कि उसकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है स्पीड की, उससे अगर ज़्यादातर मैक्सिमम स्पीड से कोई भी पर्सन है वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। अंडर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट, a person aggrieved by an award of the tribunal can prefer an appeal to. Option A, the district court. Option B, the Supreme Court. Option C, the High Court. And option D, none of the above. So over your right answer is option C, the High Court. Right? So under section 173 of Motor Vehicle Act, a person aggrieved यानी कि पीड़ित, राइट, वो किसी भी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील कर सकता है अंडर द सेक्शन 173। तो वो किसे अपील कर सकता है? हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per section 173 of Motor Vehicle Act, limitation period of filing of appeal against the award of claims tribunal is prescribed. Option is 16 days, option B 19 days, option C 120 days, and option D 30 days. So over your right answer is option B 90 days. राइट। सो सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी फाइलिंग करना है, अपील फाइल करना है अगेंस्ट दी क्लेम्स ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, तो कितने दिन तक कर सकता है? 90 डेज के इनसाइड वो अपील कर सकता है, यानी कि उसका जो पीरियड है वो कितना दिया गया है? 90 डेज का। What are the prerequisites to drive a heavy passenger motor vehicles? Option A, should have drive license for at least 2 years to drive a light motor vehicle. Option B, should have driving license for at least 1 year to drive a medium passenger motor vehicle. Option C, should have driving license for at least 1 year to drive a light motor vehicle. And option D, A and B both. So your right answer is option D, A and B both, right? सो यहाँ पे प्री रिक्विसाइट टू ड्राइव अ हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, यानी कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए प्री रिक्विसाइट यानी कि क्या शर्तें हैं ड्राइव करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर है ए एंड बी बोथ, यानी कि शुड हैव ड्राइव लाइसेंस फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, यानी कि 2 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल ड्राइव करने का। एंड दूसरा क्या रहेगा? उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर टू ड्राइव अ मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या होना चाहिए? उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर, ऑप्शन इज सेक्शन 54, option B section 55,
Option C, Section 53, and option D, Section 56. So over your right answer is option C, Section 53, right? So suspension of registration provide under which motor vehicle act? तो सेक्शन 53 के अंतर्गत आता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Heavy goods vehicles means any goods carries the gross vehicle weight of which exceed. Option A 10,000 kg, option B 12,000 kg, option C 15,000 kg, and option D 18,000 kg. So over here right answer is option B 12,000 kg, right? यानी कि हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स वो गुड्स कैरेज कर सकता है क्रॉस व्हीकल वेट विच एक्सीड 12,000 kg से ज्यादा, जिसको हम कंसीडर कहेंगे हैवी गुड्स व्हीकल. सेक्शन 3 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर. ऑप्शन ए नो ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन बी नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव. सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. यानी कि सेक्शन 3 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? तो नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो किस में दिखाया गया है? सेक्शन 3 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. A learner license or a driving license issued under Motor Vehicle Act shall be effective throughout. Option A state, option B India, option C both A and B, and option D none of the above. So over here right answer is option B India, right? यानी कि लर्नर लाइसेंस जो है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो इश्यू किया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत है, तो ये इफेक्टिव होता है कहाँ पे? थ्रू आउट द इंडिया. Who has the power to fix the age limit of motor vehicle? Option is central government, option B state government, option C the licensing authority empowered by the state, and option D the central government can leave it to the state government. So over here right answer is option A central government, right? So यहाँ पे किसके पास पावर है जो एज लिमिट फिक्स करता है मोटर व्हीकल के अंतर्गत? तो उसका वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो क्या कर सकता है? एज जो भी है उसको फिक्स किया कर सकता है, राइट? ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11, एंड ऑप्शन डी सेक्शन 12. सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेक्शन 9, राइट? यानी ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, यानी कि किस विभाग के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट? तो किस सेक्शन में है? सेक्शन 9. अल्टरनेशन इन मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 51, ऑप्शन बी सेक्शन 52, ऑप्शन सी सेक्शन 53, एंड ऑप्शन डी सेक्शन 54. सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 52. अल्टरनेशन इन मोटर व्हीकल यानी कि अगर मोटर व्हीकल जो है उसको हमें चेंज करना है, यानी उसका कलर चेंज करना है, उसका इंजन चेंज करना है, राइट? तो किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है? आता है सेक्शन 52. यानी कि अल्टरनेशन इन मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन ऑफ 52. The special provision as the payment of compensation on structured formula basis under the Motor Vehicle Acts 1988 are contained in option A section 140, option B section 163, option C section 163A, and option D section 166. So over here right answer option C section 163A, right? यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन स्ट्रक्चर्ड फार्मूला. स्ट्रक्चर्ड यानी कि माળખાગત फार्मूला के बेसिस अंडर
मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि स्पेशल प्रोविजन जो कंपनसेशन का है, पेमेंट का, राइट, कंपनसेशन पेमेंट का, वो स्पेशल प्रोविजन किस सेक्शन में दिखाया गया है? तो सेक्शन 163A में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the licensing authority may refuse to issue a conductor's license if the applicant does not possess the minimum blank qualification. Option A fitness, option B educational, option C both A and B, and option D none of the above. So what your right answer is option B educational, right? यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कंडक्टर लाइसेंस है उसको रिफ्यूज कर सकता है कब? जब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसकी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो एप्लीकेंट के पास नहीं होती है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको रिफ्यूज कर देती है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या होना चाहिए उसको? मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। As per the second schedule of the Motor Vehicle Act, what is the amount of minimum compensation in case of permanent disability? Option A rupees 25,000, option B rupees 50,000, option C rupees 5 lakh, and option D rupees 1 lakh, right? So over here right answer is option B rupees 50,000. राइट। सो यहाँ पे एज पर द सेकंड शेड्यूल ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, राइट, जो अमाउंट है मिनिमम कंपेंसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी पर्सन है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसको मिनिमम कंपेंसेशन एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट कितना दिया जाता है? रुपीज 50,000। Power of licensing authority to disqualify is provided under which section? Option is section 34, option B section 35, option C section 37, and option D section 38. So over here right answer option A section 34, यानी कि पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिस्क्वालीफाई कर सकती है, राइट, प्रोवाइड विच सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 34, राइट, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है? डिस्क्वालीफाई कर सकती है, राइट। वो किसके अंतर्गत आता है? सेक्शन 34 के अंतर्गत। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe this channel. Thank you.